Ready, everybody. Can I get a yes in the chat box or Gucci in the chat box? I'm just saying, don't worry, you'll get the recording as well. Don't worry about it. Gucci, Prada. No, not Prada, Gucci. Okay, great. Hey, Prada जो लिख रहे हैं ना बस कीड़ा कुछ नहीं कह रहा सॉरी अच्छा so we are going to solve an MCQ paper right now which is October November 2019 paper and it's a 1 hour paper. I'm just solving the MCQ paper to teach you how to go about the MCQs because a lot of students requested me to sir please solve the MCQ paper or sir MCQ papers नहीं होते और MCQ नहीं होते तो देख लेते हैं. We selected this paper because a few students said that this is a good paper, it's a little challenging paper. So let's just do it and see how challenging it actually is. If your conceptual understanding is clear, MCQs are gonna be a piece of cake for each and every one of you, and I'll prove it right now, right? Now, before I dive into this MCQ paper, I want to just teach you a simple method to go about any MCQ paper in your entire life. Whenever you come across an MCQ paper, you have to go about it like this, and that method is called the elimination method. What is meant by the elimination method? The elimination method means you don't just go for, oh, A is the correct answer. Oh, I think B is the correct answer. No. If you think A is the correct answer, you must also be conceptually so strong to say that Y is the correct answer and then Y, B, C, D are wrong answers. This is, if you practice like this, you will never get any MCQ wrong. And I'll prove it to you right now in this particular paper. ठीक है, एक बंदा एंड में मार्किंग स्कीम के साथ टैली भी कर लीजिएगा. चलो, let's start. Has the background always been a green screen? It's not a green screen. ये Apple की कहाँ में करतूत है. Okay, so without further ado, let's just start in looking into this paper. It says the concentration of aqueous sodium carbonate is Na2CO3. That's awesome. Can be found by the reaction with hydrochloric acid, right? Okay, he wants to find the concentration of aqueous sodium carbonate by reacting with aqueous hydrochloric acid. Now, if these are both solutions, what method can you use? If you want to find the unknown concentration with the help of a known concentration? Obviously, that method, everybody's right. That method is called titration, right? So we need to titrate sodium carbonate with hydrochloric acid. That's awesome. And it says the indicator used is methyl orange. Now, you also need to know which apparatus do you need to use for titration. Which apparatus do you need to use? Obviously, you need to have a beautiful burette and you need to have a conical flask and a pipette. What is this pipette used for? Please excuse my drawing. This pipette will be used to exactly measure around 25 centimeter cube of sodium carbonate, and you're gonna put it into this conical flask, pour it into this conical flask right here, and you're gonna also add methyl orange in this conical flask, and obviously the hydrochloric acid will start to you're going to open the tap of this burette and the hydrochloric acid will start to titrate the sodium carbonate, right? And the entire experiment. Now, what you need to understand is that methyl orange, if I look at its colors, you know that it's red in an acidic solution, or it gives you a red color in an acid, and it gives you a yellow color in an alkali, right? It's yellow in alkali and it's red in acid. Why is it called methyl orange? Because it's orange in a neutral solution. Done, sir. So if you put methyl orange in this particular conical flask, because sodium carbonate is a base, it'll have this solution will have a yellow color. Good. Now it's saying which items of equipment are needed. Now obviously we need a burette. Do we need a measuring cylinder? Okay, maybe you might argue that you may also need a measuring cylinder instead of the pipette. Instead of this pipette right here, you may use the burette, but that'll be an inaccuracy at your end, but you may use it, right? But what's the point of gas syringe? Like, oh my god, why would you use a gas syringe? A gas syringe is used to collect the volume. Now I agree with you that if you take sodium carbonate and you react it with hydrochloric acid, what are you going to get? You're going to get sodium chloride. You're going to get, whenever you have a metal carbonate reacting with an acid, it'll give you salt, water, and it'll give you carbon dioxide. I agree that it's going to form a gas, but do you need this gas? Are we finding rate of reaction? No, we are not. Therefore, because gas syringe is totally absurd, I'm going to say A is wrong. If I look at B, it says burette, measuring cylinder, thermometer. Why in the world would I need a thermometer? If you want a thermometer, you would probably be measuring a change in temperature. Do I need a change in temperature? Absolutely not. B is also wrong. And we know that a burette, a pipette is used, and a conical flask is used. Right here, the conical flask is used to pour this beautiful sodium carbonate into it, right? Why would you need, if you look at D, it says burette, pipette, okay, Gucci, and it says stopwatch. Why would you need a stopwatch? Am I measuring the rate of reaction? Absolutely not. Done, sir. So C is the correct option. Now, question 2 says, which process is involved in all of the following?
obtaining copper 2 sulfate from aqueous copper 2 sulfate, right? Obtaining copper sulfate crystals. So how do you obtain copper sulfate crystals? Obviously you have aqueous copper sulfate. And how do you obtain its crystals? It means how do you obtain the solid from it? You basically heat it, right? And when you heat it, what happens is that the water molecules, they're going to evaporate, right? And you heat it till the point of crystallization or till the solution is saturated. Done, sir. So this is how we obtain copper sulfate from aqueous copper sulfate, because once we heat it, we don't heat it till dryness, we heat it to the point of crystallization, right? Or till the solution becomes saturated. Done. Absolutely. So the water is going to evaporate. Done, sir. Now it says, if you look at 2, it says obtaining ethanol from the fermentation of glucose. How do you obtain ethanol from the fermentation of glucose? Obviously, if you take glucose, you react it with yeast in the presence of yeast at temperature of 25 to 35 degrees Celsius, and in the absence of oxygen, you're going to get ethanol and you're going to get carbon dioxide, right? And you're going to get 2 moles of ethanol and 2 moles of carbon dioxide. Now the ethanol that you get is very, very dilute. This ethanol that you get is very dilute. Why is it very dilute? Because the glucose that you're using, you've added water to this glucose, right? So if you've added water to this glucose, this ethanol that you get is very dilute. It's almost only 15%. So what do you need to do to get pure ethanol out of this aqueous ethanol? You need to perform a process called fractional distillation. And in fractional distillation, it works on the principle of different boiling points, right? So what's going to happen is, once you start heating it, what's going to happen is that the water molecules are going to evaporate, the ethanol is going to evaporate, and obviously ethanol boils before water, so therefore ethanol is going to come first and it's going to be condensed and you're going to get it. Why 15% ethanol? Because you've added water to glucose. Why have you added water to glucose? Because if you don't add water to glucose, the ethanol concentration that you're going to get is going to be very, very concentrated, and this will kill your yeast. So what we do is, we first of all add water to glucose, so when the ethanol forms, it's very dilute because it has a lot of water with it. Then you literally separate the two. Why do you need to add a water first? Because you don't want the yeast to die because of this concentrated ethanol. Gucci? अच्छा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम इसको हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एथेनॉल सारे एवेपोरेट हो जाते हैं, बट एथेनॉल बिकॉज इट बॉइल्स फर्स्ट, you're gonna condense it and you're gonna obtain it first, right? अच्छा, similar is the case right here. Nitrogen from liquid air. Once you have liquid air, there's gonna be a lot of, sir, great explanation, love it, awesome. So once you have liquid air, there's gonna be a lot of miscible liquid, nitrogen, oxygen, so you're gonna again perform fractional distillation, and all the things, all the molecules are going to evaporate, but the one that boils first, you'll obtain that first. The one that has a lower boiling point will be obtained first, and then the second, and then the third, and whatnot, right? Now it says, which process is involved in all of the following? Crystallization? Absolutely not. Crystallization is only involved in the first process. It's not involved in all of the processes. Evaporation? Absolutely yes. If you heat this, water molecules will evaporate here. The water molecules will evaporate here. There'll be molecules evaporating as well, right? So evaporation takes place at any temperature. Evaporation is going to effectively take place if you heat something. The particles are going to evaporate. Boil अलग-अलग temperature पे होगा, लेकिन evaporation तो हो रही होगी. So absolutely, 1, 2, 3, in all these 3 processes, evaporation takes place. Filtration किधर हो रही होती है? In the first process, you filter it out, right? So once you heat it till crystallization, you're going to obtain a hydrated salt of copper sulfate, and you crystallize, you basically filter it out, just to then later on clean it. You gently tap it between 2 filter papers, right? So you filterize only, you filter things only in the first process. And D says fractional distillation, that's used only in process 2 and 3. This is what I mean by elimination method. You have to look at all of these MCQs. I'm enjoying this, Mariam is saying. Thank you, Mariam. Acha. In which reaction is a white precipitate present when the reaction is complete? Okay, you need a white precipitate. Done. So it's saying excess aqueous barium nitrate is added to aqueous sodium chloride, right? So if you have barium nitrate, that means you have barium 2 plus ions, you have the nitrate ions, and he's saying it's added to sodium chloride. So you have the sodium ions and the chloride ions. Can you tell me, does a white precipitate form here? Does a precipitate form here? Precipitate means a solid, right? So is any of this, if the barium ion comes into contact with the chloride ion, it's still going to be soluble? No, barium chloride is still soluble. Barium sulfate is the white solid which is insoluble. Barium chloride is soluble. All chlorides are soluble except for LMS, lead, mercury, and silver. So no precipitate forms here, therefore A is wrong.
Excess aqueous sodium hydroxide is added to aqueous aluminum chloride. Now this is a very beautiful thing to look at, right? So you're saying sodium chloride or sodium hydroxide is added to aluminum chloride. Aluminum chloride is made up of two ions. It's made up of the aluminum 3 plus ion and the chloride minus ion, right? And you know, for the aluminum 3 plus ion, if you add sodium hydroxide to it, it'll give you a white precipitate. But if the sodium hydroxide is in excess, this white precipitate will dissolve. It's soluble in excess. Sir, it's saying it's excess, so it's not going to give you a white precipitate. It will dissolve, sir. Excess aqueous sodium hydroxide is added to iron sulfate. So if you look at iron sulfate, it has the iron 2 plus ion and the sulfate 2 minus ion. So if you add sodium hydroxide to the iron 2 plus ion, what's going to happen is that it's going to give you a green precipitate, and in excess it's going to be insoluble. So you're going to still have this green precipitate will be insoluble, and you realize because it's an iron 2 plus ion, it's an iron 2 plus ion, इसका मतलब क्या है कि it will turn brown near the surface on standing, right? क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो iron 3 plus में चला जाए. LMS lead mercury silver को कहते हैं, ठीक है? So it's a green precipitate, not a white precipitate. So C is wrong. बाकी तो D रह गया, लेकिन D को देख लेते. It's saying excess hydrochloric acid is added to silver nitrate. हाँ जी, hydrochloric acid is HCl aqueous and silver nitrate is AgNO3 aqueous, right? So if you add these two to a beaker, you know, always visualize things for yourself. If you add these two to a beaker, you'll have the hydrogen ion, the chloride ion, the silver ion, and the nitrate ion. And now look at this. Some of these ions, when they come into contact with each other, like the silver ion and the chloride ion, they're going to precipitate to form AgCl, which is an insoluble salt, and it is a white PPT. So D is in fact the correct option. सही है? अच्छा, which three elements exist as a diatomic molecules? Diatomic का मतलब क्या है? Diatomic means it's made up of two atoms covalently bonded. Only two atoms covalently bonded, right? So if you look at all these options, pretty easy, pretty easy. You know, hydrogen exists in the form of H2, oxygen exists in the form of O2, but helium is a group 8. Helium is a group 8 gas, and you know a noble gas exists as a monoatomic gas, right? So helium चूंकि monoatomic है, diatomic तो नहीं है, तो A is incorrect because of helium. B को देखें, nitrogen is N2, chlorine exists in the form of Cl2, but neon again, it's a group 8 or a group 0 noble gas, therefore they are monoatomic, they're not diatomic gases. Monoatomic, they exist as single atoms, not covalently bonded. So B is wrong because of neon. C says nitrogen, oxygen, and fluorine. Absolutely, nitrogen exists in the form of N2, O2, and fluorine is F2. Therefore, C is the correct option. If you look at D out, D is O2, Cl2, and helium again. That's a noble gas, and noble gases are monoatomic gases, not diatomic gases. Let's look at question number 5, Fiverino, right? This is how can we see the periodic table and solve the questions in 40 minutes. It's not a 40 minutes paper, it's a 1 hour paper, it's the O-level paper, huh? These questions are really easy. पता नहीं बच्चे कह रहे थे सर this is one of the most difficult paper, तो देख लेते हैं. आपका IGCSE भी है तो दिस इज़ गुड फॉर प्रैक्टिस. ओ लेवल्स के मज़े के सवाल हैं MCQs के, और IGCSE के स्टूडेंट, ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि भाई आप IGCSE करें. ओए होए इस क्वेश्चन में मैं फंसी थी, देख लेते. IGCSE के लिए 45 मिनट्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा आसान होते हैं ना, गला दबा दूँ. ओ लेवल्स के ज़्यादा मज़े के हैं. अच्छा, नाउ it says question 5 says sulfur dioxide is a gas and it's prepared by heating sodium sulfite. Sodium sulfite. What is the sulfite ion? Sulfite is the SO3 2 minus ion, right? So sodium sulfite का formula क्या होगा? Na2SO3. Does the examiner ask this? No, I'm just writing it for your understanding, right? So it's saying with hydrochloric acid. So when you react it with hydrochloric acid, is this reaction a part of your course? Absolutely not. बट ही इज सेइंग कि यार जब ये रिएक्शन होता है ना तो आपके पास SO2 बनता है. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस विच फॉर्म्स. वैसे ये रिएक्शन क्या होता है? यू गेट सोडियम क्लोराइड, यू गेट H2O एंड यू गेट सल्फर डाइऑक्साइड, बट यू डोंट नीड टू नो दिस रिएक्शन, राइट? नाउ दिस इज व्हिच सेट ऑफ apparatus is suitable for preparing and collecting a dry sample of sulfur dioxide. देख लेते हैं सर. B is right off the bat wrong. Why is B wrong? Right off the bat. And it says sulfur dioxide is more dense than it. We need to keep this in mind. But B is wrong. Why is B wrong? Oh, इस dumb बंदे ने क्या किया है? This guy has used a filter funnel right here. So when the sodium sulfite and the hydrochloric acid react together, when sulfur dioxide forms, it's a gas. And the gas, instead of just going here, the gas will also leave this place. Gases. आपने इधर जगह इसके लिए खुली छोड़ी है, ये gas sulfur dioxide will escape right here.
क्या स्टूपिड बनना है, राइट? सो यू ऑल्सो अब्यूज द एग्जामिनर फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस पेपर, यार व्हाट अ स्टूपिड एमसीक्यू, लाइक मतलब क्या है? नाउ इफ यू लुक एट द अदर ऑप्शंस, द अदर थ्री ऑप्शंस हैव दिस सर्कल एंड अ क्रॉस. इस सर्कल और क्रॉस का मतलब क्या है कि इट्स शोइंग अ टैप, राइट? तो ऐसे ये चीज़ें आप डाल देते हैं, आप इस टैप को बंद कर देते. सो ए बी सी मे बी द करेक्ट ऑप्शंस. नाउ लेट्स लुक एट ए. If you look at A, this reaction will form sulfur dioxide, right? Now this sulfur dioxide will go through this delivery tube right here, but when it passes through calcium oxide is CaO and sulfur dioxide is SO2. Can you guys tell me, will any reaction take place? Absolutely it will. This is a basic oxide and this is acidic in nature. This is an acidic oxide. So this basic oxide and acidic oxide will react together and they're going to give you calcium sulfide, CaSO3. तो नॉट कैल्शियम सिलिसेट. कैल्शियम सिलिसेट फॉर्म्स इन द ब्लास्ट फर्नेस है, वो CaSiO3 होता है. ये कैल्शियम सल्फाइट है, राइट? तो सल्फर डाइऑक्साइड, यू नीडेड टू कलेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस डम्बो हैज एडेड कैल्शियम ऑक्साइड हियर. तो ये तो इधर ही आपके पास कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा. सल्फर डाइऑक्साइड तो गया काम से. मतलब क्या क्या आसान बात है इसमें, क्या है? सो ए इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ लेट्स लुक एट C and D. If you look at C and D, the only difference between C and D is this in this particular apparatus, you know, SO2 goes here and SO2 is also going here. इस दोनों में सिर्फ फर्क क्या है? दोनों में केमिकल भी सेम इस्तेमाल हो रहा है. फर्क क्या है? One is downward delivery and one is upward delivery, right? You guys might be wondering, sir, concentrated sulfuric acid क्या है? पहले आपके कोर्स में होता था कि स्टूडेंट must know that this is a drying agent. तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो पानी बनता है ना, पानी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है. सल्फर डाइऑक्साइड चूँकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, इधर रिएक्शन हो रहा होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है. दिस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइज दैट मॉइस्चर अप. सर यू टॉट अस दिस, दैट्स ऑसम. सो दिस विल ड्राई दिस मॉइस्चर अप, राइट? और एक दफ़ा मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो ये इधर से निकल के आ जाएगा. इधर मॉइस्चर ड्राई हो गया, यू बबल इट थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड, मॉइस्चर ड्राई हो गया. अब यू डोंट नीड टू नो दिस, बट आई हैव टॉट इट इन माई लाइफ क्लासेस, राइट? तो मॉइस्चर ड्राई हो गया और ये इधर से निकल. ना सवाल पैदा होता है, सर अपवर्ड डिलीवरी होगी या डाउनवर्ड होगी? सी ही इज रिटन दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर डेंस देन एयर, सो इट मस्ट बी डाउनवर्ड डिलीवरी. होगा क्या? SO2 मोर डेंस देन एयर का मतलब है इट विल सिंक एट द बॉटम, एंड वंस इट सिंक्स एट द बॉटम इट विल पुश ऑल द एयर अपवर्ड्स, इट विल डिस्प्लेस ऑल द एयर अपवर्ड्स और खुद इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. बट इफ यू से दैट इट्स गोना बी एन अपवर्ड डिलीवरी, तो ये तो एयर से ज़्यादा डेंस है, इधर से सल्फर डाइऑक्साइड आएगा और ऐसे बिल्कुल नीचे जाएगा, तो कलेक्ट तो नहीं होगा. अपवर्ड डिलीवरी इज फॉर लेस डेंस गैसेस, डाउनवर्ड डिलीवरी इज फॉर मोर डेंस गैसेस. और खुद सोचे, हीलियम, इफ यू टेक हीलियम बलून्स you'll see that they're gonna float on air. Why? Because they're less dense than air. लेकिन आप कभी क्या करें, गुब्बारा निकाले और उसमें ऐसे blow into that गुब्बारा, blow into that balloon, you'll realize that it'll sink to the bottom. Why? Because when you blow into it, you're basically putting carbon dioxide into it, and if you're putting carbon dioxide to it, it's more dense than air, so it sinks to the bottom. So याद रखिएगा, if you want to collect a more dense gas, you're going to use downward delivery, because the more dense gas will sink at the bottom and it'll displace the air. And if you want to collect a less dense gas, what will happen is you need to use upward delivery, because the less dense gas, what will do, it will basically displace all the air right here and collect at the top. सर ड्राइंग एजेंट्स को याद करना है? नहीं, अभी नहीं है कोर्स में, नहीं है कोर्स में, पहले बता दिया नहीं है. बस मैंने सिर्फ बता दिया कि कौन सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्राइंग एजेंट. अच्छा, खुदा न खास्ता आपको नहीं था पता, ये दो एलिमिनेट करने के बाद ये दोनों तो बिल्कुल डिट्टो हैं. द ओनली टू डिफरेंस इज दिस टू. So exactly, what is my correct answer? The correct answer is not D, it's C, because that's downward delivery. Next, which diagram best represents the structure of a solid metal? You know metallic structure क्या होता है? It's a lattice of positive ions and sea of delocalized electrons. In its sea of delocalized electrons. और मजे की बात है, इसके बेस पे तो सी और डी बिल्कुल गलत है. क्यों? सी में ही हैज मेड द इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आरंट लोकलाइज्ड, बिल्कुल नहीं. तो ये तो बिल्कुल. एंड इफ यू लुक एट द की, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव आयन. लैटिस का मतलब है रेगुलर अरेंजमेंट. नेगेटिव आयन, मेटल्स में नेगेटिव आयन किधर से आ गई? ये नेगेटिव आयन का सिंबल तो ये ए में है, ये देखिए, ये दिस इज द सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन. ये तो बिल्कुल गलत है, राइट? बिकॉज यू नीड अ पॉजिटिव आयन, अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब रह क्या गया? सर बी रह गया. बी इज द करेक्ट. अच्छा, बी और डी में गलती क्या है? डी में आप देखिए, ही हैज टेकन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड दिस स्ट्रक्चर. नो, दे आर प्रेजेंट डीलोकलाइज. ये आउटसाइड किधर से आ गए? सो इफ यू लुक एट बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज यू रियलाइज दैट इट्स अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन. सर लैटिस कैसे है? लैटिस कैसे? ये देखिए, ये 1 2 3
1 2 3 बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट है। 1 2 3 सिर्फ स्पेसेस ज़्यादा दिए, हालांकि स्पेसेस ज़्यादा नहीं देने चाहिए, सिर्फ स्पेसेस ज़्यादा दिए। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर डी लोकलाइज, लुक एट दिस, द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल डी। ये डी सी में क्या गलती है, सी में ये गलती कि इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइज रखा है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लाइनों में थोड़ी ना होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल नहीं, दे आर डी लोकलाइज्ड, दे आर ऑल स्प्रेड अराउंड। इट्स अ सी ऑफ डी लोकलाइज है। डी लोकलाइज का मतलब है दे आर मूविंग इधर उधर, ये तो एक ही जगह में इनको रखा हुआ है, क्या हो गया है, तो सी में ये गलती है। गॉट इट? अच्छा 7, hydrogen sulfide burns in excess oxygen according to this equation. Okay, 48 dm cube of hydrogen sulfide is burned. इसमें क्या है, moles and stoichiometry का कहते हैं which volume of sulfur dioxide will be formed at room temperature and pressure. तो hydrogen sulfide का data दिया and he's saying find sulfur dioxide. What's the first step? See, you have hydrogen sulfide and you need to go to sulfur dioxide and they're connected through moles. Look at this, 2 moles of hydrogen sulfide will give you 2 moles of sulfur dioxide, but you are having this volume right here. So the first step in stoichiometry is always to convert the known data into moles. So पहले तो इनको moles में convert करें। V is equal to V is equal to n times 24, right? Volume कितना है 48, n times 24, 24 divide हो जाएगा, 48 divided by 24, what do we get? 2 moles. So you have 2 moles of H2S. Now from moles of H2S we need to go to moles of SO2, and you'd realize that 2 moles of H2S gives me 2 moles of SO2, therefore you also have 2 here. तो 2 moles मुझे कितने moles देंगे, जाहिर सी बात है डिवाइड बाय 2, नहीं देखो H2S है और ये SO2 है, तो अगर 2 मोल्स आपको 2 मोल्स दे रहे हैं SO2 के, तो आपके पास इधर भी 2 मोल्स है ना, तो 2 मोल्स आपको कितने देंगे, 2 ही दे रहे हैं, 2 मोल्स दे रहे हैं सर। And then you literally calculate the volume, V is equal to n times 24. V कितना है सर, कैलकुलेट करना है, मोल्स कितने हैं, 2 है, टाइम्स इट बाय 24, व्हाट डू यू गेट, 48 dm cube. C is the correct option. खत्म 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 गाइज एंड गर्ल्स, आसान है कि मुश्किल है सर? हलवा है, बहुत आसान है। अगेन, व्हाट डू यू मीन अगेन, अगेन क्या है, you convert the known data into moles, 2 moles आ गए, then you use the equation to jump from H2S to SO2, तो 2 moles, अगर 2 moles देने इधर हैं भी 2 moles, तो 2, if 2 moles gives you 2 moles, 2 moles would obviously gives me 2 moles, right? And then you have now the moles of SO2, ये moles of SO2 आ गए, तो अब 2 moles of SO2 में कितना वॉल्यूम है, V is equal to n times 24। सर ये पूरा पेपर तो नहीं होगा आज, आज ही होगा, देख लेना आज ही होगा, आगे आसान हो जाता है। सर आपने गलती से इजी पेपर चूज़ कर लिया, और नहीं ये इसका थ्रेशोल्ड 27 मार्क्स था मेरे ख्याल से कि 26, तो पता नहीं, आप लोग बताएं जो पेपर आप कहेंगे 2023 और 2024 की नहीं, 23 के भी मैंने किए, 22 के भी नहीं, वो सारी हुए हैं। सर हाइड्रोजन सल्फाइड के मोल्स पहले से इक्वेशन में दिए हैं, सो आई कैलकुलेट दम। ओ नो, इक्वेशन इज जस्ट रिलेशनशिप, किडो मोल्स स्टोइकोमेट्री पढ़ ले, कॉन्सेप्चुअल मसला है, क्योंकि देखें ये दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। आपके पास डेटा तो ये है कि इतने से कितना बनेगा, तो इतने से आपको पता है ये इसका मतलब है इतने मोल्स, एंड देन यू स्टिच देम, यू डोंट नीड H2S, यू नीड SO2। नहीं 2025 का सर बासित की क्लास है। अच्छा, which row correctly identifies the different formula of ethene and its homolog and of its homologous series? Empirical form, ethene is what, C2H4, जितने कार्बन से हाइड्रोजन are twice the number of that. Why? Because it's an alkene, alkenes का जनरल फॉर्मूला तो यही होता है। अच्छा, it says what's the empirical formula? Empirical formula is the simplest whole number ratio, right? So it's 2:4, तो दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो you're gonna get CH2। तो yes, CH2 is in fact the empirical formula, general formula नहीं है, that's CnH2n, और molecular formula is C2H4। मतलब क्या ये डबल, so C and D are wrong. Now if you look at C2H4, that's not the general formula, that's the molecular formula, and general formula is जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन are twice the number of that, is the correct option। आगे बढ़ें। Ammonia is manufactured from nitrogen and hydrogen by the Haber process. What is the percentage yield when 60 kg of ammonia is produced from 60 kg of hydrogen? देखिए ये बहुत आसान है, kgs को ग्राम्स कंसिडर करें, कोई फ़र्क नहीं, दोनों kgs में है ना, तो दोनों को ग्राम्स ही कंसिडर करें। अच्छा, हर लेक्चर रिकॉर्डेड है, यू कैड गेट इट फ्रॉम मिस नूर। अच्छा देखिए, बेसिकली इसको ऐसे विजुअलाइज करें, होता क्या है कि एक फैक्ट्री है जिसमें अजर काम करिए या एमन काम करिए, दे आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री एंड दे आर सेइंग कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, शी इज़ यूजिंग 60 grams ऑफ हाइड्रोजन टू गेट 60 grams ऑफ अमोनिया। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग प्रैक्टिकली।
Practically speaking, you're using 60 grams of hydrogen to get 60 grams of ammonia. अब मैं आता हूँ, मैं ऑडिटर हूँ आपका, मैं कहता हूँ यार आपकी कंपनी तो मुझे नहीं लगता इतनी एफिशिएंट है। तो आमना मुझे कहती, या एमन कहती, या आयशा कहती, सर प्रूव इट टू अस, कैसे आप करेंगे? मैं कहता हूँ यार आप 60 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से 60 ग्राम्स ऑफ अमोनिया बना रहे हो। ऑब्वियसली देयर आर लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉस हो गए, मशीन में लॉसेस हो गई, इनपुट में आउटपुट में लॉसेस हर जगह होते हैं। मैं कहता हूँ मैं ज़रा देखता हूँ कि थेरेटिकली स्पीकिंग 60 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बन सकता था। तो मैं सिर्फ स्टोइकियोमेट्री इस्तेमाल करता हूँ, राइट। सो आई नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू डू इन स्टोइकियोमेट्री, यू फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द नोन डेटा इनटू मोल्स। तो मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू मोल्स? मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। मास कितना है? 60 ग्राम्स है। मोल्स मुझे नहीं लेना है। मोलर मास हाइड्रोजन का क्या है? 1 into 2, right? So n is equal to 60 divided by 2, you get 30. So 30 moles of hydrogen है, और 30 moles of hydrogen, theoretically speaking, now I need to go from hydrogen to ammonia, right? So equation, दूसरा step होता है use the equation. So I'm going from hydrogen to ammonia. You know that 3 moles of hydrogen give me 2 moles of ammonia. 3 gives me 2 moles of ammonia. तो अगर मेरे पास 30 moles of hydrogen हो, right here, which I have calculated, तो कितना ammonia आएगा? n is equal to 30 times 2 divided by 3. What do we get? 30 times 2 divided by 3, 20 moles. 20 moles of अमोनिया आता है। और इसको आप कन्वर्ट करें मैस में, तो मैस इक्वल मोल टाइम्स मोलर मैस। 20 मोल्स हैं, और मोलर मैस अमोनिया का कितना है? नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1, बट यू 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 14 प्लस 1 टाइम्स 3, 14 इंटू 14 प्लस 3, दैट 17। 20 इंटू 17 करे क्या आता है? कोई तो बताए, कोई तो बताए क्या होगा? ईमान सो जाओ, कल देख लेना। इफ़ योर आइज कीप ऑन क्लोजिंग, कल देख लेना। 20 टाइम्स 340। सो थियरेटिकली स्पीकिंग, मैं आप लोगों को है ना थप्पड़ एक सर पे मार देता हूँ कि थियरेटिकली स्पीकिंग, इफ देर वर नो लॉसेस, इफ द यील्ड वॉज 100%, परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, तो अगर 340 ग्राम्स इज 100% आउटपुट, अगर कोई लॉस ना होता तो 100% 340 ग्राम्स मिलते। लेकिन हमें मिल कितने रहे? हमें सिर्फ 60 ग्राम्स अमोनिया के मिल रहे हैं। तो दैट्स व्हाट परसेंटेज? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट यू गेट? 60 into 100 divided by 340, 17.64%, and that's my B. इतना आसान है। महद मोल्स के लेक्चर्स देख लो सर, वो दूसरा फार्मूला है, फार्मूलेज हम नहीं देखते इधर। थेरेटिकल यील्ड कहाँ से आया है? इक्वेशन से कैलकुलेट किया है। और थेरेटिकल और एक्चुअल पे आप लोगों ने रट्टे मारे होते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया कि भाई आपके पास 60 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है। मैं देखता हूँ कि थेरी वाइज स्टोइकियोमेट्री के साथ देखता हूँ, जस्ट यूजिंग स्टोइकियोमेट्री कि 60 ग्राम से कितना अमोनिया बनना चाहिए था। तो आई कन्वर्टेड दिस इनटू मोल्स एंड देन यूज्ड द इक्वेशन टू फाइंड द मोल्स ऑफ अमोनिया एंड देन converted the moles of ammonia again into mass. So I found out that from 60 grams, if there were no losses, you would get 340 grams. That's what we know from our equations, right? But what am I getting practically? Practically, I'm only getting 60 grams. So if there were no losses, that means if I have had 100% output, I'd actually get 340 grams. But I am getting only 60 grams. How much percentage output is this? So my factory is only 17.64% efficient. मतलब मुझे फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। मेक सेंस नाउ? ऑसम। आपकी मोल्स कमज़ोर है भाई, मोल्स के लेक्चर्स देख ले मेरे, मैं इतना ही कर सकता हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस? सर दोनों की मोल्स निकालें। 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, मास इक्वल मोल टाइम्स मोलर मास। सर मास कितना है? 71। मोल्स निकालने हैं। क्लोरीन इज अ गैस, तो क्लोरीन इज 35.5, बट इट्स Cl2, सो टाइम्स इट बाय 2। हाउ मेनी मोल्स डू यू गेट? n इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Cl2। 1 मोल ऑफ क्लोरीन है हमारे पास जनाबे वाला, और 2 मोल्स ऑफ, सिर्फ 12 तक हो जाएगा? नहीं, 12-15 तक जाएगा। अच्छा, 2 grams of gaseous hydrogen, तो grams again converted into moles, mass equal mole times molar mass. What's the mass of hydrogen? That's 2 grams. moles निकालें। molar mass of hydrogen, hydrogen is H2, तो hydrogen का mass 1 है, लेकिन times it by 2 because you have 2 hydrogens, right? So what do you get? n is equal to 2, n is equal to 2 divided by 2, that's 1. So hydrogen का भी 1 मोल है और क्लोरीन का भी 1 मोल है। So what's the ratio between them? The ratio is 1:1, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अगर आप इनको कन्वर्ट करें, सो यूड हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 6.02 इंटू 10 इज पावर 23, एंड यूड ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 6.02 इंटू 10 इज पावर 23, और फिर रेशियो निकालने के लिए फिर इनको डिवाइड करना होता है आपने। तो जो मोलर रेशियो है वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो है। सो इफ मोल इज 1:1, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल इसमें भी 6.02 इंटू 10 इज पावर 23 है, और उसमें भी 6.02 इंटू 10 इज पावर 23 है। सो इफ यू टेक द रेशियो, इट्स 1:1, राइट? सो देयरफॉर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट?
The diagram shows the electrolysis experiment using inert electrodes. Inert electrodes means he's either using graphite electrodes or platinum electrodes. Or this is the positive electrode, that's the negative electrodes. नहीं मोस्ट के लेक्चर्स मिस नूर को आपने कांटेक्ट करना होगा, दो तीन है, ज़्यादा नहीं है. Acha. So that's the positive anode and that's the negative cathode, right? Now it's saying you have aqueous copper 2 sulfate ions here, right? So it means that you have the copper 2 plus ions and you have the sulfate ions, and because it's aqueous, you also have the hydrogen ion and you also have the hydroxide ion. Similarly is the case here. If you have dilute sulfuric acid here, that means you have the hydrogen ion and the sulfate ion, and because of water, you also have the hydroxide ion. Done, sir. Now we're going to notice that because this is the positive anode, this electrode will have a positive charge all over it, and it's going to attract which ion, the negative ions or the positive ions? Obviously it's not going to attract the positive ions, so hydroxide, and between the sulfate ion and the hydroxide ion, obviously the hydroxide ion will win the race. 4 hydroxides go together to give you 2H2O plus O2, and they'll lose a total of 4 electrons. And if you look there, here you have the negative charge all over the cathode, and the only positive ion that you have is the hydrogen ion. So 2 hydrogen ions go together to gain 2 electrons and give you H2 gas. These are going to be the products. अच्छा सर ये बीच में क्या है, ये जोड़ा, this is just a salt bridge just added to confuse you guys. ये एक salt bridge होता है, ये आपको A level में पढ़ाया जाता है, just to confuse you इसने ये चीज़ डाला हुआ है. Salt bridge allows electrical neutrality, आपके कोर्स में नहीं है. खत्म. तो एनोड पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, और कैथोड पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है. नाउ इट सेज which row shows what happens to the concentration of electrolyte. What is happening to the concentration of electrolyte? इधर से हाइड्रोक्साइड डाल रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है, इधर से हाइड्रोजन जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहा है. इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन, these ions which can conduct electricity due to free moving. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, is any solution which can conduct electricity due to free moving ions. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? Because the ions are going out of this solution, electrolyte L में भी कम हो रहा है, M में भी कम हो रहा है. एक में हाइड्रोजन निकल रहा है, एक में हाइड्रोक्साइड निकल रहा है. So what is happening? नहीं, L में भी कम हो रहा है. देखिए what is happening to the electrolyte, concentration stays constant. It doesn't stay constant, it decreases. हाँ, ये दोनों ठीक है. M में भी it also decreases. No sir, D is the correct option. सर Cu जाएगा या H प्लस? नहीं, Cu और H प्लस में कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि ये एनोड है. एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इट्स नॉट गोना अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयन लाइक चार्जेस रिपेल. सर हाउ डू यू नो द ions moved out? Because this has a positive charge, positive attracts negative. Sir, how to choose between OH and H? I am confused. Kiddo, why are you confused? हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन एनोड पे जाएगा. हैं, सही है. ऐसे तो या 1 बजे तक बैठे होंगे हम. जूम यूजर रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा. सर हाउ इज योर माउथ नाउ? यार गुजारा कर रहा हूँ. Molten sodium chloride. Molten sodium chloride means that you only have the sodium ion and the chloride ion because it's molten, right? कोई पानी नहीं है, कोई hydrogen ion और hydroxide ion नहीं है. Done. It says which correctly shows the reaction at the cathode. Cathode is the negative electrode. So the negative is going to attract the positive or negative? The negative is going to attract obviously the positive ion. So the sodium ion will obviously gain an electron at the cathode and become sodium. And gain of electrons is written on the left hand side of the equation. If you look at this beauty, you'd realize that sodium ion gains an electron to become sodium. That's C, right? But if you look at D, D is wrong. D is saying that sodium ion is here and it loses an electron. That's absolutely wrong. पहली बात ये होता नहीं. अब देखिए मैं आपको सारे ऑप्शंस गलत भी प्रूव करूँ. पहली बात, sodium ion does not lose an electron. But let's suppose in O levels it did lose an electron. तो सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम एटम बनता है कि सोडियम 2 प्लस बनेगा, फिर तो सोडियम 2 प्लस बनना चाहिए उसूलन. तो ये भी गलत है. सर 2 chloride ions lose 2 electron, minus 2 electron, lose 2 electrons to become Cl2. Absolutely, this is the correct. It's absolutely correct, but it's the correct equation. But this is what will happen at the anode, not at the cathode. So B is also wrong. इधर क्या कह रहे हैं, 2 chloride ions 2 electrons और गेन करें तो टोटल क्लोराइड आयन के ऊपर तो फिर 2 माइनस का चार्ज होना चाहिए. ये Cl2 कैसे बना? ए भी गलत है. सर ये माइनस वाला तो हम कभी लिखते ही नहीं. हाँ हम नहीं लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो. हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं, 2 chloride ions go together to give you Cl2 by losing 2 electrons. हम ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि फुल इक्वेशन लिखने में आसानी होती है. याद है मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हुई है. शमीन आपने मेरे से पढ़ा कि नहीं, पता नहीं. अच्छा, an energy profile diagram is shown. Acha, from the reactants to the products, that's always your enthalpy change, and from the reactants to the top, that's your EA.
अच्छा सर, आपको कैसे पता है ये इंथैल्पी चेंज है? देखें, द एनर्जी टेकन इन ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज दिस मच एंड द एनर्जी गिवन आउट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज दिस मच। टेकन इन इतनी, गिवन आउट इतनी, तो ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी जो है इन दोनों को ऐड करें तो ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, राइट? सो इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी ई ए इज ऑलवेज द एक्टिवेशन एनर्जी इज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द टॉप। ठीक है जी। अच्छा, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? देखें, एनर्जी टेकन इन इज ओनली दिस मच एंड एनर्जी गिवन आउट इज दिस मच, राइट? टेकन इन इतनी है कम और गिवन आउट ज़्यादा है। सो एनर्जी टेकन इन ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग is less than the energy given out during bond formation. So overall, it must be an exothermic reaction. It says, what does an arrow R on the diagram represent? An endothermic enthalpy change? No, it's an exothermic energy change. The activation energy तो ये है जनाब, क्या हो गया examiner? The energy it's taken in by the reactants? No, that's not it. The energy taken in by the reactants is right here. That's the EA. This is the energy taken in by the reactants. तो सी भी गलत है. The enthalpy change of the reaction? Absolutely, it's the enthalpy change of this reaction. है? अच्छा, which statement about exothermic and endothermic reactions are correct? In an endothermic reaction, energy is used to break bonds, but no, और इसका गलत आवाज एग्जामिनर का. What do you mean, but no energy is released? No, 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 no. If it's an endothermic reaction, you know that in a particular reaction, endothermic bit is also there, exothermic bit is always there. But if I say that the overall reaction is exothermic, that means that energy taken in during bond breaking would be less than the energy given out during bond formation. And if I say the overall the overall reaction is endothermic, that would mean that energy taken in during bond breaking is more than the energy given out during bond formation. तो taken in ज़्यादा है, given out कम है, इसलिए endo है. ये तो नहीं कि energy release ही नहीं होती या energy taken in ही नहीं होती. तो no energy is released? Absolutely not. Energy is in fact released, but that's going to be less than the energy taken in. So A is wrong. In an endothermic reaction, energy is released when bonds form, but more energy is used to break bonds. Hanji, energy taken in during bond breaking is more than the energy given out during bond formation. तो बिल्कुल सही बात है. In an exothermic reaction, energy is released both by breaking and नहीं, bond breaking is endo. बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सो. तो ये बोथ में एनर्जी तो रिलीज नहीं होती, क्या हो गया? In an exothermic reaction, energy is released when bonds form, but no energy is needed. No, energy is absolutely needed to break the bonds, but exo वो इसलिए बनता है because energy given out is more than the energy taken in during bond breaking. That's why your D is also wrong. आपसे कभी ज़िंदगी में आपको रीचेकिंग नी चेकिंग की ज़रूरत, मैं कभी रीचेक नहीं किया अपने एमसीक्यूज़, बिकॉज मैं हमेशा ऐसे करता जाऊँ और हमेशा देखेंगे एंड में कोई बच्चा आखिर में मार्किंग स्कीम के साथ टैली भी कर ले, तो देखिएगा फुल मार्क्स होंगे हमारे इंशाल्लाह, हैं, और टेंशन नहीं लेना. अच्छा, गैस पी डिकम्पोजेस टू फॉर्म गैस क्यू. Two experiments are carried out to investigate the rate of reaction. The conditions are the same except they are both at different temperatures. If they are at different temperatures, obviously rate of reaction इन दोनों का different होगा. अच्छा, वैसे अगर मैं इन दोनों graphs को देखूँ, he's saying the graphs are plotted, right? तो आपके पास P है, P is gonna decompose to form Q. P जो है वो टूट के form Q बन रहा है, right? Q वॉल्यूम दे रहा है. अच्छा, पहले मैं इन दोनों को बाद में देखता हूँ, मुझे सिर्फ बताए which graph shows a greater rate of reaction. You could easily see, देखिए, you could easily see अगर मैं इधर टेंजेंट ड्रॉ करूँ और इधर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, which tangent is steeper? T1 में टेंजेंट is steeper और T2 में टेंजेंट is steeper? Obviously gradient आप टेंजेंट से निकालते हैं ना, तो टेंजेंट T1 में स्टीपर है. द स्टीपर द टेंजेंट, द हायर द ग्रेडियंट एंड द मोर द रेट ऑफ रिएक्शन. सो यूड रियलाइज कि T1 में बिकॉज द टेंजेंट इज स्टीपर, इस T1 का रेट ऑफ रिएक्शन हायर है. दैट मीन्स दैट T1 is at a higher temperatures. Alternatively, what you could have done is you could have seen कि यार T1 ख़त्म किधर हो रहा है, T1 इधर किधर ख़त्म हो रहा है. देखिए इधर, इसके बाद वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे T1 ख़त्म हो रहा है. ये देखिए इस टाइम पे इधर कहीं T1 ख़त्म हो रहा है. और अगर T2 को देखें, T2 इधर पे आके भी अभी तक कांस्टेंट नहीं हो, तो इतना ज़्यादा टाइम लिया है, अभी तक इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट अ टर्मिनल लाइन राइट हियर. तो T2 इज टेकिंग मच लॉन्गर टू बिकम कांस्टेंट देन T1. T1 तो इधर ख़त्म हो रहा है. तो यू कुड ऑल्सो हैव चेक्ड इट आउट बाय लुकिंग एट द टाइम. दिस टेक्स ओनली दिस मच टाइम टू फिनिश, इसके बाद रिएक्शन ख़त्म हो जाती है. देखिए लाइन स्ट्रेट हो गई, लेकिन ये इधर तक भी ख़त्म नहीं हुआ और भी ये चल रहा है, राइट? So you realize that T1 is at a higher temperature, so I could say T1 is at a higher temperature than T2, T1 is at a higher temperature than T2. ये दो बातें गलत है, therefore B and D are wrong. अब A और D को देखते हैं. A और D वो कह रहे हैं what is the correct, ये रेशियो दिखा रहे हैं X और
वाई। अब ये बड़ा फजूल सा सवाल था, लेकिन आप अगर देखें ये ब्लॉक्स को मेजर करें, देखिए इसने आपको दिया है 0, ही इज़ ऑल्सो मैंशनड दे आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। तो अगर आप देखें कितने लाइन्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो दिस क्यू एक्चुअली रीचेज 9। और अगर पी को देखें, पी शुरू किधर से हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, P is starting from 6. So if you take the ratio between Q and P, reaches 9 and P starts at 6. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, क्या रहे, 3 पे डिवाइड हो रहे हैं. So it's 3:2, right? Q का वॉल्यूम is 3 times, Q का वॉल्यूम is 3 and out of 5, and P का वॉल्यूम is 2 out of 5, right? तो Q क्या है, Q के साथ क्या लगा हुआ है, Y, this means that Y is 3, और P के साथ क्या लगा हुआ है, X, this means X is 2. तो X is 2 and Y is 3. Simple math, so that's why A is the correct option, not C. Sir, are you recording it? Yes. In which reaction is the underlying substance reduced? Simple, आप oxidation state देखिए, this is in its pure elemental state. इधर 0 है कार्बन, और इधर अगर आप देखिए इधर +2 है. So 0 from +2, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस तो नहीं हो रहा है. तो A is incorrect. +2 क्यों है सर, क्योंकि ऑक्सीजन इज 2 माइनस, देखो CO में यू नो ऑक्सीजन इज -2, और कार्बन जो है ये आपके पास नहीं पता कितने, बट द ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एनी कंपाउंड इज 0. तो X इज इक्वल टू ये -2 इधर गया तो +2 हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. क्लोरीन इज इन प्योर एलिमेंटल स्टेट 0 है, इधर -1 हो जाता है. तो अगर 0 to -1 क्यों है, बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर और एनी आयन इज इट्स चार्ज. सो इफ यू गो फ्रॉम 0 to -1, दिस मीन्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर इट इज़ रिड्यूस्ड. और वो यही कह रहे हैं कि कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सी देखें, मैग्नीशियम इधर 0 है, इधर मैग्नीशियम +2 है. क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज इन ए ग्रुप 2, इट विल मेक अ 2+ आयन, देयरफॉर द चार्ज ऑन द आयन इज द सेम एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विच इज़ +2. तो सी इज़ रॉन्ग. जिंक देखें, इधर 0 है, प्योर एलिमेंटल स्टेट है, इधर +2 है, बिकॉज द आयन इज मेकिंग अ 2+ चार्ज. तो 0 to +2 ये दोनों ऑक्सीडाइज, वन देयर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर मैग्नीशियम एंड जिंक बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड. खत्म. तो डी भी गलत है. The equation for the industrial process is shown. Which row is correct? अच्छा, oxidizing agent or reducing, oxidizing agent or reducing. देखें, carbon is 0 here, and here carbon is +2 right here, and hydrogen is +1 right here, and it's 0 right on the right hand side. क्यों, मुझे कैसे ये बात पता है, carbon is in its pure elemental state तो 0, and hydrogen is here in its pure elemental state to 0, right? It's not combined with any other element or any other atom. It combined with its own atom, not with any other atom, so 0. Hydrogen is +1. Hydrogen's oxidation state is always +1, you need to know this, and oxygen is always -2 except for in peroxides, right? तो अगर आप देखें हुआ क्या है, कार्बन जो है it has gone from 0 to +2, therefore कार्बन जो है वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, and anything which is oxidized is a reducing agent, and anything which is reduced इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. और ये क्यों ऐसे होता है, क्योंकि देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोला है, परोक्साइड H2O2 को कहते हैं. देखें बड़ी सिंपल सी बात, H2O2 परोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन -1 होता है, यू कैन कैलकुलेट. देखें बड़ी सिंपल सी बात है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मार्केटिंग एजेंट क्या करता है, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल. मार्केटिंग एजेंट क्या करता है, आपके लिए मार्केट करता है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, टीचर्स तो ये रट्टा लगवाते हैं, मैंने भी सिर्फ ये इस्तेमाल किया, बट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट व्हिच आई हैव टॉट इन माय लाइफ क्लास. देखें रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, it's an agent which reduces things, right? So reducing agent is a substance which oxidizes itself to reduce others. क्या मतलब है, ये कार्बन इतना मनहूस का बच्चा होता है, ये क्या करता है, it's a reducing agent. खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, खुद तो इट वेंट फ्रॉम 0 to +2, लेकिन ये 0 to +2 खुद ऑक्सीडाइज हुई, लेकिन इसने ये इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दिए. किसको दिए, इसने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके दिए और हाइड्रोजन गैस बनाए. सो इट हैज़ ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ बट रिड्यूस्ड वाटर. और वाटर क्या किया, वाटर खुद जो है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन्स किधर से लिए होंगे, इससे लिए होंगे. तो खुद तो ये रिड्यूस हो गया, लेकिन इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट. सो दैट्स द रियलिटी बिहाइंड इट. तो देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है सर, आपके पास H2O इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स इट. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कार्बन है. और ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, द एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, सो इट्स एंडोथर्मिक. डन सर. सो देयरफॉर डी इज आल्सो रॉन्ग, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सर मैथ क्लास इज एट 12 किडो, इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन द मैथ क्लास. ये 12:15 12:20 तक तो जाएगी ये क्लास, क्योंकि हम बातें भी बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, बस ये आगे सवाल आसान है. Sodium hydroxide is added to the solution to alter its pH. अच्छा, sodium hydroxide क्या है, it's an alkaline solution, it's basic in nature. ये pH को क्या करेगा, what would sodium hydroxide do to pH? It's gonna increase the pH of a solution, right?
सो इसिंग अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जिस सोल्यूशन में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला उस सोल्यूशन का पीएच कम था, जब आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो द सोल्यूशन वेंट फ्रॉम कम पीएच टू अराउंड न्यूट्रल विच इज पीएच 7। तो पीएच सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, इट रेजेस द पीएच। सो इफ इट गोज टू न्यूट्रल दैट मीन्स, इफ इट गोज टू पीएच 7 दैट मीन्स वो कहीं नीचे था, एसिडिक सोल्यूशन था, उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड रेज द पीएच अप अंटिल विच पॉइंट, अप अंटिल पीएच 7, राइट। सो इट रेजेस द पीएच। और ये सोल्यूशन, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि ये सोल्यूशन 100% एसिडिक था पहले, राइट, दिस सोल्यूशन वाज एसिडिक। अच्छा, इट सेज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड, मुंह पे चपेड़ मारे एग्जामिनर के, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन alkali, it's a base. Sodium hydroxide will lower the pH, it's not an acid, acids lower the pH, this will increase the pH, pH 7 से ऊपर हाइड्रोक्साइड का होता है ना। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 14, नहीं भाई ये अल्कलाइन सोल्यूशन का 14 होता है। देखिए मतलब कितने स्टूपिड किस्म के ऑप्शंस दिए होंगे, यू वुड फाइंड, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल मसले होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या दे दिया। The pH of this solution before sodium hydroxide was added was below 7. Yes, it was below 7 and now it has raised it. So D is the correct option. Sodium chloride is dissolved in distilled water. अच्छा, sodium chloride क्या है, नमक है, नमक का pH 7 है, it's neutral, right? And distilled water, it's not tap water, distilled water is pH 7, right? It says universal indicator is added to the solution. अगर universal indicator को डालें, universal indicator को डालें, you know for universal indicator shows वेरियस कलर्स ओवर अ रेंज ऑफ पीएचेस। तो रेड, ऑरेंज और येलो ये एसिडिक में शो करते हैं, रेड बीइंग मोस्ट एसिडिक, येलो बीइंग ऑलमोस्ट स्लाइटली एसिडिक, ग्रीन इज न्यूट्रल पीएच 7, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ये बिव है, बिव, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट हो जाता है, राइट। सो ग्रीन विल बी न्यूट्रल राइट हेयर एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर शुड गिव यू, और यूनिवर्सल इंडिकेटर शुड गिव यू अ ग्रीन कलर बिकॉज बोथ हैव पीएच 7। व्हाट इज द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर, नॉट ब्लू, वाई अल्कली, क्या हो गया, दिमाग खराब है आपका, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये वाटर है, क्या हो गया। पर्पल किधर से आ गया, अल्कली। रेड कौन सा एसिडिक सोल्यूशन है, ग्रीन, यस बोथ आर पीएच 7। विच स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया इज करेक्ट, अमोनिया इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस, दुनिया की सबसे बड़ी बकवास है, मैंने इधर देख लिया, कलरलेस ओडरलेस है। अमोनिया हैज अ पंजेंट स्मेल व्हेन यू पिस, यू नो व्हेन यू पिस, अक्सर जो, अब मैं क्या कहूँ, चलो, व्हेन समबडी डज पिशी, अक्सर वो स्मेल जो होता है दैट्स बिकॉज ऑफ अमोनिया, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, इट स्मेल्स लाइक स्वेट, गंदा। 18 का क्या आंसर है, डी है ना। आंसर्स को ना देखो भाई, सवाल को समझो। तो इट्स नॉट अ कलरलेस गैस, सॉरी इट्स नॉट अ ओडरलेस गैस, कलरलेस तो है, ओडरलेस नहीं है, राइट। It is a gas that turns damp blue litmus paper red. No, it turns damp red litmus paper blue because why? It's basic. It's a weak base. So B is wrong. अच्छा, ये रेड को ब्लू कर देता है, मतलब सिंपल सिंपल बात है। इट इज़ फॉर्म व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, लेट सपोज आप सी और डी में कंफ्यूज हो गए, लेट सपोज आपको नहीं आता, देखिए मैं आपके पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर रहा हूँ। लेट सपोज आपको ना सी की समझ आई ना डी की समझ आई, डी पढ़ तो लें एक दफ़ा। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वनेडियम पेंटा ऑक्साइड। मुझे एज ए कैटलिस्ट, मुझे आप बताएं अमोनिया कैसे बनता है, थ्रू हेबर प्रोसेस। और हेबर प्रोसेस की कंडीशंस अगर आपको आते हैं तो यू वुड इजीली एलिमिनेट डी, यू वुड से दैट यू नीड आयरन एज द कैटलिस्ट, you need a temp of 450 degrees Celsius, you need a pressure of 200 atmospheres. Sir, iron is the catalyst, vanadium pentoxide तो SO2 to SO3 में होता है। देखिए मैं आपका कोर्स भी साथ साथ रिवाइज कर रहा होता हूँ। तो ये वनेडियम पेंटॉक्साइड में 450 डिग्री सेल्सियस 2 एटमॉस्फेयर, तो डी तो बिल्कुल। अच्छा, अब सी कैसे आपको पता लग सकता है, सी सही है। अब ये तो आपने ट्रायल एंड एरर सीखी, लेकिन सी सही क्यों है, देखें। इसिंग यू हैव पोटेशियम नाइट्रेट एंड यू हीट इट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम। व्हाट ही इज डूइंग इज, देखिए वो आपके साथ माइंड गेम्स के लिए, नाइट्रेट आयन है, देखिए चीज़ों को ऑलवेज ट्राई टू ऑलवेज स्प्लिट देम एज वेल बिकॉज ऑफ द नाइट्रेट आयन। व्हाट्स द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, what's the test for nitrate ion? You add aluminum foil, you warm it, and you also add aluminum foil with sodium hydroxide. यही तो इसने किया। And what's the observation? Ammonia gas is released. तो यही होता है। तो बच्चे ये दे के, पता नहीं बच्चों ने कहा ये क्या है, ये हमने पढ़ा नहीं है, ये रिएक्शन क्या है, तो उसने आपकी आयन की टेस्टिंग की इधर। Which statement gives reasons why aluminum sulfate can be used, ammonium sulfate can be used as a fertilizer? तो अमोनियम सल्फेट को वैसे क्यों इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर में, बिकॉज इट हैज़ नाइट्रोजन इन इट, नाइट्रोजन कॉन्टेंट, एंड नाइट्रोजन हेल्प्स टू इम्प्रूव प्लांट्स ग्रोथ।
NPK फर्टिलाइजर्स आपने पढ़ा, नाइट्रोजन होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए, पोटेशियम, तो इसमें नाइट्रोजन है इसलिए इसको इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, इट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस किधर है? अमोनियम सल्फेट में एग्जामिनर आप मुझे दिखाएं, शो मी कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर किधर है, मतलब सॉरी फॉस्फोरस किधर है, मतलब क्या यार, is wrong. It contains nitrogen to promote plant growth and is soluble. हाँ, all ammonium ions are soluble, इसीलिए तो ये deoxygenation of rivers करती है ना, लेकिन deoxygenation sulfate ions की वजह से नहीं होता, वो nitrates और phosphates की वजह से होते हैं when they are bonded to ammonium, right? So yes, they are soluble. That's why B is the correct option, and nitrogen does promote. If you look at C sulfur ions which will change the pH, तो ये fertilizer का इसके साथ क्या ताल्लुक है? C is wrong. D. It contains sulfate ions and forms ammonia when lime is added to. If it forms ammonia, मेरी बात सुने. If it forms ammonia, तो अमोनिया जब बनेगा तो ये तो नाइट्रोजन जो कंटेंट होगा उससे निकल जाएगा, तो ये तो फर्टिलाइजर नहीं है, तो फर्टिलाइजर का बेड़ा आपने गर्क दिया। रिमेंबर आई हैव टॉट दिस इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट में आपको बताया ना कि डायरेक्ट चूना नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि नाइट्रोजन वुड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ NH3। वो आपको कह रहे हैं अमोनिया निकल जाते, तो फिर नाइट्रोजन ऐड करने का क्या फ़ायदा? आपने फिर चूना डाल दिया, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, एंड अमोनिया एस्केप। तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फर्टिलाइजर के लिए तो यही है, नाइट्रोजन है इसमें ये वो। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन प्रोसेस आर शोन। Reaction 1 is this much, and it's showing an enthalpy change of negative. That's why it's an exothermic reaction. It says, and then later on he's saying SO3 reacts with H2O, sulfur trioxide reacts with water to give you sulfuric acid. Done. It says reaction 1 is reversible. हाँ है reversible, sign भी लगा हुआ है। Reaction 1 is exothermic. हाँ है, negative sign है बिल्कुल। Reaction 2, sulfur dioxide reacts with water to form sulfuric acid. कुछ डम्बोस कहेंगे हाँ बिल्कुल, absolutely right, absolutely wrong. It's not sulfur dioxide, it's sulfur trioxide. 1 and 2 is the correct option. Three statements about elements carbon, nitrogen and sulfur are shown. Three elements, हाँ जी, carbon, nitrogen and sulfur are shown. अच्छा जी, carbon, nitrogen and sulfur. अच्छा, they are in groups next to each other on the periodic table. हाँ जी बिल्कुल, carbon is in group 4, nitrogen is in group 5, sulfur is in group 6, so they are in groups next to each other. Their neutrons and protons ratio are all 2 to 1. मुझे ज़रा एक बात बताएं, carbon is 612, नाइट्रोजन इज व्हाट 714, और सल्फर क्या है 1632। बच्चों ने कहा हाँ हाँ 2 1 है ना, ये 12 है, ये 6 है, 2 1। ओ यू डम्बोज, देयर इज अ प्रोटॉन एंड ही इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है। ये 2:1 बन रहा है कि 1:1 बन रहा है? 14 माइनस 7 न्यूट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन्स है, 1:1। 32 माइनस 16 न्यूट्रॉन्स एंड 16 प्रोटॉन्स, इट्स 1:1 नॉट 2:1। सो दैट्स 2 इज रॉन्ग। अब देखें, 2 आपने गलत कर दिया, 1 आपने टिक कर दिया, डायरेक्ट आप 1 और 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर confirmation purpose, they each form acidic oxide. Yes, it's a non-metal oxide, so 1 and 3 correct option. No, non-metal oxides form are acidic oxide, huh? What property of halogens? What is the property of halogens? Their atoms decrease in size down the group. No, they increase in size down the group because the number of shells increases. Shells जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, atom का size बढ़ता जाता है, तो A is wrong. Their melting points increases down the group. हाँ, down the group देखिए, chlorine is a gas. And how do you remember this? Chlorine or fluorine gases है, and then bromine is a liquid, and then obviously आपके पास so iodine जो है it's a solid. Now look at this, it's saying melting point increase ही तो हो रहा है। देखें, initially it's a gas, chlorine और fluorine gas, इसका मतलब क्या है? They've already melting क्या होती है? Melting क्या होती है? It's the process of converting a solid into a liquid. That's what melting is. तो gaseous state में they have already melting, इनका melting point बहुत low है। लेकिन अगर आयोडीन में देखें तो इट्स अ सॉलिड, हाँ ये मेल्ट नहीं हुआ। तो व्हाट डू यू रियलाइज दैट एज यू गो डाउन द ग्रुप, बिकॉज एक तो गैस है वो ऑलरेडी मेल्ट हुआ है, लेकिन आयोडीन तो मेल्ट नहीं हुआ, तो एज यू गो डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये सर बिल्कुल द मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, फुल बकवास की है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो कंडक्ट करता, नॉन मेटल्स है, मेटल्स नहीं है, भी फजूल बात है। देर सिल्वर सॉल्ट्स आर ऑल सॉल्यूबल इन वाटर, ये भी बकवास की है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सारे इनसॉल्यूबल होते हैं, और यही आपके पास वाइट पीपीटी है, यही आपके पास येलो पीपीटी है, सॉरी गाइस फॉर अब्यूसिंग एग्जामिनर, और यही आपके पास स्क्रीन प्रेसिपिटेट है, ये टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है सोडियम नाइट्रेट। दे आर इनसॉल्यूबल, ऑल ग्रुप 7 आर सॉल्यूबल एक्सेप्ट फॉर LMS, लेड, मर्करी एंड सिल्वर।
Acha, part of the periodic table shows positions of four elements. These are not elements. These are not the elements. Actual symbol, ठीक है? Which element has a high melting point and has a variable oxidation state? देखिए high melting point तो इसका नहीं होगा, ये तो non metals की side पे है. इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है. But he saying it has. अच्छा ये group one में group one के भी melting points low होते हैं. तो A भी गया, A भी नहीं है, D भी नहीं. लेकिन if you look at B and C, it says variable oxidation state. वेरिएबल ऑक्सीडेशन से सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स का होता है एंड ट्रांजिशन मेटल्स क्या चीज़ है? दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स पाए इस ब्लॉक में जाते हैं जिसको डी ब्लॉक कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट इस ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट हो. जैसे जिंक है, जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट इफ़ यू वांटेड टू फाइंड अ ट्रांजिशन एलिमेंट वो इस ब्लॉक में ही होंगे और कई ब्लॉक में नहीं होंगे. Brass is made up of copper and zinc, ठीक है? It's an alloy, obviously. It's an alloy, so obviously it's made from copper. Alloys क्या होते हैं? It's a mixture of metals with other elements. Mixture of metals with other elements. Acha, brass is dash of these two elements. Brass is an alloy or a compound. It's not a compound. It's a mixture of these two elements. They don't chemically react together, right? They're just physically combined. And it says brass is used in electrical plugs because it is an electrical conductor की insulator. Insulator नहीं है भाई, conductor it has metals. So metals have delocalized electrons, and that's why it conducts electricity because these delocalized electrons carry charge. So it's a conductor. Be wrong. मेटल का अब आगे के सवाल बहुत जल्दी जल्दी होते हैं. ये पहले 20 सवाल स्लो होते हैं, 20 से 25 आगे के ऐसे करके हो रहे होते हैं. मेटल कार्बोनेट्स डीकम्पोज व्हेन हीटेड, ठीक है? विच कार्बोनेट इज द मोस्ट स्टेबल टू हीट? अब ये आपके कोर्स से निकल चुका है, बट लेट मी जस्ट टेल यू दैट द मोर रिएक्टिव अ मेटल इज, द मोर स्टेबल इट्स कार्बोनेट इज. क्योंकि जितना तेज़ी से रिएक्शन वो करेगा उसके बाद जब वो कार्बोनेट बनाएगा वो खुश होगा, राइट? दिस इज जस्ट टू डम इट डाउन फॉर यू. जितना रिएक्टिव एक मेटल होता है उतना उसका कार्बोनेट स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव होके घर बना लेता है. ये अब इसने अपना घर बसा लिया, अम्मी अबू के साथ लड़ाई करके घर बसा लिया, राइट? इट वॉज वेरी रिएक्टिव, अब बना लिया, तो नाउ इज एज अ वेरी स्टेबल कार्बोनेट. बट दिस हैज़ नाउ बिन रिमूव फ्रॉम योर कोर्स. लेकिन अब देखिए कैल्शियम, कॉपर, लेड, जिंक, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा था कि जब इसने कार्बोनेट बनाया? ऑब्वियसली कैल्शियम वाज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कॉपर, लेड और जिंक में से. दैट्स व्हाई इट हैज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट, बट दिस इज नो longer a part of your course. Tin is a metal between iron and lead. We know that because please stop calling me a careless zebra. A careless zebra instead is iron. Try learning how copper saves gold. Try learning how copper saves gold. So you need to know your reactivity series. अच्छा, वो कह रहे हैं कि टिन जो है ना वो इधर है आयरन और लेड के बीच में. ये आयरन है, ये लेड है, बिल्कुल इनके बीच में. It says which method is used for the extraction of tin from its ore. So tin अपने ore से क्या, देखिए कार्बन से नीचे, you know that you could extract all metals that are below carbon with the help of, by reducing it with carbon. So you don't heat it alone, you don't heat it with aluminum powder, you heat it with carbon. सर electrolysis भी तो कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, because but this is very expensive. electrolysis आप हर ore का कर सकते थे, हर मोल्टन ओर का आप कर सकते हो, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इट्स एन आयनिक कंपाउंड होगा इसका, टिन ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो नॉट ब्रशिंग माई टीथ एंड टेकिंग द क्लास, दैट्स ऑसम. एज लॉन्ग एज यूर टेकिंग इट गाइज, आई एम डूइंग इट फॉर यू. मतलब क्या है, शामीन चिल कर लो. आइसोटोपिक मास क्या होता है, चिल करो, पहले ये कर लें, बता दूंगा. अच्छा, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस. होता क्या है, ये वो चेंबर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यू हैव एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन एंड यू हैव द O2 माइनस आयन. एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा. O2 माइनस आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, O बन जाएगा. बट यू नो दैट टू ऑक्साइड आयन्स मस्ट गो टुगेदर टू गिव यू व्हाट, to give you O2 plus 4 electrons. Each oxide ion loses 2 electrons. एक दफ़ा O2 बन जाता है, आपको पता है कि O2, this will happen at the anode, this will happen at the cathode, right? And you'd realize कि O2 एक दफ़ा बनता है, it will react with the graphite electrodes to give you carbon dioxide. इसीलिए एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए ग्रीन हाउस गैस जो कि बनता है, और इसका इलाज जो बंदा करेगा, ये एनोड का फर्दर रिएक्शन होता है. इसका इलाज जो करेगा, ही माइट ऑल्सो मे और मे नॉट गेट द नोबेल प्राइज, नेक्स्ट नोबेल प्राइज, ठीक है? अच्छा, कहते हैं क्रायोलाइट. क्रायोलाइट क्या करता है? क्रायोलाइट इज एन इम्प्योरिटी विच डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट. इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड.
कंपाउंड एंड इट वुड रिक्वायर अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो क्रायोलाइट ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है. और क्रायोलाइट में सोडियम आयंस होते हैं, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस एंटायर सोल्यूशन. इलेक्ट्रोलिसिस की जो एफिशिएंसी है वो अच्छा कर देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन अच्छा कर देते हैं, फ्री मूविंग आयंस आ जाते हैं. तो कहते हैं एल्यूमिनियम आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम. ये बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम आयंस यही करते हैं, कैथोड पे तो यही हो रहा है. क्रायोलाइट इंक्रीजेज, नो, क्रायोलाइट डिक्रीजेज द मेल्टिंग. क्रायोलाइट रिएक्ट्स विद impurity, no you dumb person, क्रायोलाइट is an impurity itself. The carbon cathode has to be replaced regularly. The carbon cathode, अब ये देखिए, दिखने में मुझे भी ऐसे लगा, पहली पहली दफ़ा मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ओ ये बात तो सही है, लेकिन ये मनहूस क्या कह रहा है. कार्बन कैथोड, कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इधर तो एल्यूमिनियम आयंस आ रहे हैं, इधर तो एल्यूमिनियम आयंस आ रहे हैं. द कार्बन एनोड नॉट द कैथोड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली. Methane and sulfur dioxide are air pollutants found in the Earth's atmosphere. Which two are correct? तो मीथेन किधर से बनता है? वेजिटेटिव मैटर्स की डिकम्पोजिशन से बनता है, बिल्कुल. डिकेइंग से बनता है, सॉरी, डिकेइंग ऑफ वेजिटेटिव मैटर. और किधर से बनता है? वेस्ट गैसेस फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ एनिमल्स हैं, जो काउज वगैरह जो वेस्ट गैसेस फार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स बेसिकली मेथेन है. तो सी एंड डी आर रॉन्ग. और वन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल वोल्केनोज की साइड पे होते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर. फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल वो रिएक्शन होते हैं विच इन्वॉल्व्स लाइट. कैडी लाइट रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बताएं कौन सी लाइट के लिए? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. लाइट इधर किधर आ गई है. खुशी, बस थोड़े सवाल और रह गए हैं. द वाटर सप्लाई कैन बी प्योरीफाइड. आपको पता है रिकॉर्डिंग कितनी टाइम की बनी है? 59 मिनट्स. अभी तक 59 मिनट्स की रिकॉर्डिंग बनी है. द वाटर सप्लाई कैन बी प्योरीफाइड बाय फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन. तो फिल्ट्रेशन से क्या होता है? सॉलिड्स वुड बी रिमूव. और क्लोरिनेशन से क्या होता है? इट विल किल द बैक्टीरिया, किल द माइक्रोब्स. बैक्टीरिया हो गए हैं, माइक्रोब्स हो गए हैं, एक ही बात है. अच्छा, विच सब्सटेंस रिमेन्स इन वाटर सप्लाई आफ्टर दिस ट्रीटमेंट? सर फाइन सैंड. फाइन सैंड तो नहीं होगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा. हार्मफुल माइक्रोब्स क्लोरिनेशन से रिमूव हो जाएंगे. सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, अगेन इट्स अ सॉलिड, फिल्ट्रेशन से रिमूव हो गए. मिनरल सॉल्ट्स जो है वो चूँकि डिजॉल्व होते हैं तो ये इसके अंदर ही रहेंगे. डन सर, आगे बढ़ें. Which statement are true for homologous series? Each series contains saturated compounds. नहीं भाई, alkenes में तो कौन सी saturated, वो तो unsaturated होते हैं. The compounds in each series are unreactive. नहीं, सिर्फ alkenes unreactive होते हैं, बाकी तो reactions कर रहे होते हैं, alkenes भी कर रहे होते हैं. Each series has a general formula. हाँ, alkenes का अपना है, alkenes का अपना है, alcohols का अपना है, बिल्कुल सही है. Each series और each family has a ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही. ग्रेडेशन का मतलब है ट्रेंड, बिल्कुल ट्रेंड होता है, हर फैमिली में ट्रेंड होता है. इन एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, दिस इंक्रीजेज, विस्कोसिटी इंक्रीजेज, वॉलेटिलिटी डिक्रीजेज एंड वॉट नॉट. तो 3 and 4, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Alkanes are saturated compounds containing carbon and hydrogen only. 1, 2, 3, 4 are saturated compounds. Which pair are isomers? Isomers क्या होते हैं? Different atoms of this different atoms. Which different atoms नहीं कहना चाहिए. They are compounds. Compounds कहना चाहिए, atoms क्यों कह रहे, वो तो isotopes होते हैं. Compounds with the same molecular formula but different. Same molecular formula but different. Different, same but different structural formulas. मोलेकुलर, पहले देखें स्ट्रक्चर्स को देखने से पहले मोलेकुलर फार्मूलाज एक नज़र देख लें. 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हैं, तो C6H. एच कितने होंगे? 6 टाइम्स 2 इज़ 12, 12 प्लस 2 इज़ 14. इसमें देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6H12, बिल्कुल सर. C6H12 नहीं, C6H12 प्लस 2 14. ये भी C6H14 है, ये भी C6H14, और दोनों के स्ट्रक्चर्स देखे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ और है और इसका स्ट्रक्चर कुछ और है, तो 1 और 2 तो हो सकते हैं. 3 और 4 को ज़रा देखें. 3 और 4 को इसको काउंट करें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ज़रा हाइड्रोजन्स को काउंट करें कितने हैं? ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन्स को काउंट किया करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये तो C6H12 है. और ये काउंट करें, इसमें तो कार्बन ही 7 हैं. ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7H, 7 टाइम्स 2 इज़ 14, 14 प्लस 2 दैट 16. तो मुझे एक बताएं, इनमें से आइसोमर्स कौन से हो सकते हैं? आइसोमर्स 3 और 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि इनके तो मोलेकुलर फार्मूलाज ही सेम नहीं. तो रह क्या गया? 1 and 2. 1 and 2 हैव द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है. हाँ जी. और इनकी नेमिंग भी आप कर सकते हैं. नेमिंग कराऊँ इसकी कि ना नहीं कराऊँ? ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, so that's propane.
और कौन से पे मीथाइल प्रेजेंट है? सर यू हैव अ मीथाइल एटम और मीथाइल मॉलिक्यूल ऑन द थर्ड कार्बन, सो इट्स 3 मीथाइल प्रोपेन, नाम इनका मुख्तलिफ, एक 3 मीथाइल प्रोपेन और ये देखें 1 2 3 4 5, तो दैट्स प्रोपेन, लेकिन कौन से कार्बन पे मौजूद है मीथाइल? दैट्स 2, सो 2 मीथाइल प्रोपेन। ये मैंने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है नाम, तो देखिए नाम भी दोनों के मुख्तलिफ हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर नॉट इन योर कोर्स 1 and 2। When butene reacts with bromine, which compound? याद रखिएगा, whenever an alkene reacts with bromine or halogen और जो भी, याद रखिएगा the new atoms bond where the double bond breaks। ये मैंने बार बार बताया, जिधर डबल बॉन्ड टूटेगा new atoms will bond there, जिधर डबल बॉन्ड ब्रेकेगा उधर ही वैलेंसी बनती है ना, तो new atoms bond there where the double bond breaks। डन सर। अब देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, अगर डबल बॉन्ड इधर होता और ये टूट जाता तो एक बी आर एटम इधर आता और एक बी आर एटम इधर आता, तो ये ए तो बिल्कुल गलत, दोनों एक भी नहीं आ सकते। बी को देखे, हाँ द डबल बॉन्ड मस्ट हैव बीन हियर, तो जैसे टूटा होगा एक बी आर एटम इधर आ गया, एक बी आर एटम इधर आ गया, तो बी इज करेक्ट। सी को देखे, डबल बॉन्ड अगर इधर टूटता तो एक बी आर इधर आता, एक इधर आता, और अगर इधर टूटता तो एक बी आर इधर आता और एक इधर आता। ये कौन सा मंतक है कि एक बी आर को इधर और एक बी आर को इधर लगाया? तो सी इज रॉन्ग। सर प्रोपेन या पेंटेन? सॉरी प्रोपेन नहीं, पेंटेन, पेंटेन, माय बैड, प्रोपेन नहीं पेंटेन। थैंक यू, थैंक यू यार। ये कौन थी? ये चौधरी अली अफनान, आपको 500 रुपये इनाम हो गया, मैसेज कर दीजिएगा, मेरी गलती जो बंदा पकड़ेगा वो 500 रुपये इनाम लेगा। एस पेंटेन। अच्छा, डी को अगर आप देखें तो डी में भी एक मंतक इधर लगाए, एक मंतक, अगर इधर डबल बॉन्ड टूटता है, इधर डबल बॉन्ड ब्रोक हियर, देन द बी आर एटम्स वुड बी हियर, बट इफ इट ब्रोक हियर देन वन बी आर वुड कम हियर एंड द अदर बी आर वुड कम हियर। Sir, you are also tired. Oh, nahin, dafa kar. So D is also wrong. That's why B is the correct option. How many structural isomers are with the formula C4H10O? बताएं जी, how many structural isomers have the formula C4H10O? देखें, alcohol है 1 2 3 4। एक हो सकता है कि it's butane 1 ol, फिर OH को उठा के दूसरे कार्बन पे लगाएं, इसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं, ब्यूटेन 2 ol, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, फिर क्या करें, एक CH3 को उठा के बीच में लगा लें, जैसे एल्केन्स में करते थे ब्यूटेन में, तो एक CH3 को उठा के मैंने इधर लगा दिया और OH को मैंने पहले कार्बन पे ही रहने दिया। और फिर क्या हो सकता है कि आप एक CH3 को इधर लगा लें और OH को भी अब पहले की बजाय दूसरे कार्बन पे लगा लें। दीज आर द 4। सर मेरा इनाम नहीं दिया 10 रुपए का, तो आप बताएं, मुझे दे देता हूँ। तो दीज आर द 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कैन फॉर्म एक पोजीशन। ये देखें, ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड दीज टू, रिमेंबर आई हैव टॉट यू पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म है और ये दोनों पोजीशन आइसोमर, एंड बोथ आर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो 1 2 3 4 इन सब के नाम मुख्तलिफ हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी। विच स्टेटमेंट्स अबाउट C3CH2CH2O, ये वैसे कौन सा अल्कोहल है? मेथ एथ प्रोपानोल, प्रोपैन 1 ol कह रहे हैं। कहते हैं व्हेन प्रोपैन 1 ol इज ऑक्सीडाइज्ड इट फॉर्म्स प्रोपानोइक एसिड। बिल्कुल, जब ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल्स के तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। व्हेन दिस बर्न्स इन द एयर, एयर इसका ऑक्सीजन, राइट, एयर में ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो इट कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एब्सोल्युटली, दैट्स द कंबशन रिएक्शन, because it's a fuel, right? It'll burn because alcohols are also fuel. Alkane, alkenes, alcohols, they're all 3 families are fuels. अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेथ एथ प्रोपानोल, प्रोपैन 1 ol कैन बी फॉर्म बाय द एडिशन रिएक्शन बिटवीन ईथीन एंड स्टीम। इसका गला बंदा दबाए, ईथीन इज अ 2 कार्बन एल्कीन, तो 2 कार्बन एल्कीन से 3 कार्बन अल्कोहल कैसे बन सकता है? नो, फ्रॉम अ 2 कार्बन एल्कीन यू आर गोना फॉर्म अ 3 कार्बन अल्कोहल। तो सर सॉरी, फ्रॉम अ 3 कार्बन एल्कीन यू आर गोना फॉर्म अ 3 कार्बन अल्कोहल, ठीक है। तो 2 कार्बन एल्कीन से तो 2 कार्बन अल्कोहल बनेगा, ईथीन से एथेनॉल बनेगा, प्रोपीन से प्रोपानॉल बनेगा, ब्यूटीन से ब्यूटानॉल बनेगा, तो 3 इज रॉन्ग। तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन, ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोपानोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, और ये पढ़ते साथ ही मैंने सी और डी गलत कर दी, बिकॉज सी और डी इज नॉट प्रोपानोइक एसिड, दिस इज मेथ एथ प्रो ब्यूट। ये कार्बन एक इधर भी है, मेथ एथ प्रो ब्यूट। याद है मैंने आपको कहा था एक कार्बन एक नंबर कम होके डालना होता है, इसकी वजह यही थी।
So this is not propanoic acid, this is butanoic acid. Now between A and B, you don't even have to look at the balancing. ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या ये फॉर्मूला है, कैल्शियम हैज अ चार्ज ऑफ 2 प्लस कार्बोनेट इज 2 माइनस, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, नॉट Ca2CO3. ए भी गलत है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और बी बिल्कुल ठीक है. इफ़ यू इवन लुक एट द बैलेंसिंग, you have two propanoate ions here and you have two propanoic acid here. Carbon dioxide forms and H2O forms. Absolutely correct. An acid reacts with alcohol to form ester and water. देखेंगे कौन सा एसिड था, मेथ एथ प्रोप, सो इट वाज प्रोपेनोइक एसिड, इसीलिए इसका नाम प्रोपेनोएट हो जाएगा. एंड मेथ कार्बोक्सिलेट नाम बन जाता है, राइट. एंड दिस इज मेथ, दिस इज एथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, सॉरी मेथनॉल कह रहा हूँ, एथेनॉल है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट लूजेस द हाइड्रोजन, सो इट विल बी इथाइल. और अगर आप देखें सर, बिल्कुल इथाइल, मेथ एथ इथाइल, मेथ एथ प्रोप इथाइल, प्रोपेनोएट बना हुआ है. डन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टर फॉर्म, इट्स इथाइल नॉट प्रोपाइल, एंड दिस इज प्रोपेनोएट नॉट इथेनोएट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Part of a polymer chain is shown. What is the monomer? ये बहुत मजे का सवाल है. What is the monomer? देखें, how do you get, it's an addition polymer, you realize, you देखिए straight chain में सिर्फ कार्बन्स लगे हुए हैं, it's an addition polymer. और देखिए नीचे आपके पास unsaturated monomers दिए हैं, तो addition polymer. अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि monomer क्या है? Remember, put a cut, yes, Noor is right, put a cut after every 2 carbons in the straight chain. तो हर 2 कार्बन इन द स्ट्रेट चेन के बीच में कट डालें, एंड बिटवीन 2 कट्स यूर गोना हैव योर मोनोमर. ये आपका मोनोमर है, कोई सी भी 2 कट्स लें. और इस कट का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड जो है ये इधर आ रहा है और ये बॉन्ड इधर आ रहा है, सो दिस वाज एक्चुअली द डबल बॉन्ड दैट ब्रोक. तो अगर मैं इस पूरे को दोबारा बनाऊं, यूर गोना हैव CH3 राइट हियर विच इज़ बॉन्डेड टू अ कार्बन which is bonded, double bonded to this carbon, which is bonded to CH3 right here, and these are my hydrogens. Done, sir. तो सर पोटाकट की समझ नहीं आई, महाद देख लो, ये यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया होगा. तो दिस इज़ योर मोनोमर. और अगर इसका नाम मैं देखूं तो दिस इज़ मेथ, दिस इज़ मेथ एथ, ओ कलर मैं बदलूँ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट. और अगर मैं नाम देखूं तो इट्स ब्यूटीन. लेकिन ब्यूट कौन सा इन, ब्यूट कौन सा इन, द डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 and 3, सो यू आर गोना इंसर्ट द स्मॉलर नंबर. दिस इज ब्यूट टू इन, सो दिस वाज एक्चुअली द मोनोमर है. सर आप पिंक कलर नहीं यूज़ करते, अब इसके बाद यूज़ करते हैं. सर क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, सो इट्स ब्यू टू इन. अगर आप देखें तो ये तो मैथ एथ प्रोप है, ये तो प्रोप 1 इन है, ये मैथ एथ है, ये तो E3 है. तो बी और सी राइट ऑफ द बैट गलत है, इट्स बिटवीन ए एंड डी. तो ए और डी को देखें, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, एंड 1 2 3 4 दिस इज ऑल्सो ब्यूटीन, बट दिस इज ब्यूट. कौन सा इन है ये, और ये भी ब्यूट, कौन सा इन है. So the double bond is between 1 and 2 carbon, so this is but 1 in and this is but 2 in. जो छोटा नंबर होता है तो वो हम लेते हैं, तो this is but 2 in, is the 2 और 3 के बीच में था, and this is but 1 in. तो A is wrong, D is the correct option. Last question. Which statement about polymers is correct? Fats and nylon all contain the COO linkage. Absolutely wrong. Nylon में amide linkage होता है, CONH इस linkage को कहते हैं. कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. और ये आपके पास क्यों एमाइड लिंकेज क्यों होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायमीन इज यूज्ड. फैट्स में है, माइन नाइलॉन्स में नहीं है. मोनोमर्स यूज्ड इन कंडेंसेशन पॉलीमर must contain carboxylic acid and hydroxyl group. Absolutely wrong. Why? Because nylon और प्रोटीन में तो एमाइन भी होते हैं, तो must contain, ये बकवास लिखी है. Polyethylene will decolorize bromine. Absolutely not. Polyethylene looks something like this. Polyethylene looks something like this. It is saturated. सर लेकिन इधर तो, इसमें से कोई बच्चा होगा वो सोचेगा सर लेकिन इधर तो ethene लिखा हुआ है. Oh my god, it's made up of ethene. That's why the name ethene is there. But when a polymer forms, the double bond is gonna break and they're gonna join together. It's gonna become saturated. तो ब्रोमीन के साथ तो तब रिएक्शन होता है वो जब एल्कीन होता है और वो अनसैचुरेट होता है, द डबल बॉन्ड ब्रेक्स और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो जाता है और उसको डीकलराइज कर देता है. लेकिन दिस इज अ पॉलीमर, इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड. तो ये सिर्फ ईथीन लिखा है, इट्स जस्ट मेड फ्रॉम ईथीन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉलीथीन. हालांकि इट बिकम्स सैचुरेटेड, देन गेट्स सिंगल बॉन्ड्स. तो सी इज रॉन्ग.
Proteins with the amide linkage are biodegradable as they can be hydrolyzed. हाँ बिल्कुल सही है. Now this is no longer in your course, but you realize कि condensation polymers can be easily hydrolyzed, which means that they can be broken back into its monomers, right? और ये क्यों होता है? Hydrolyzed का क्या मतलब है? You basically add dilute acid or you add dilute base and you heat it. तो ये क्या होता है, ये लिंकेज टूट जाती है. लिंकेज आप इसको बेसिकली वापस वो पानी दे देते हो, तो लिंकेज टूट जाती है और उनको पानी का हाइड्रोजन मिल जाता है और OH मिल जाता है, एंड दे बिकम बायोडिग्रेडेबल, राइट, विच मीन्स दे गो बैक इन टू इट्स मोनो. बायोडिग्रेडेबल मीन्स दैट दे आर दो सब्सटेंसेज विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंजाई. तो ये जो है, या डिकेड बाय फंजाई, तो ये बेसिकली बिल्कुल बायोडिग्रेड. इसीलिए प्लास्टिक्स का हम इस्तेमाल कम करते हैं और इन चीज़ों का, फंगी है सर, फंजाई नहीं है, अच्छा जो भी है, तो हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. तो इफ़ समबडी सर, मैंने मार्किंग स्कीम के साथ चेक किया, सारे आंसर्स ठीक है. आई टोल्ड यू विल नेवर गेट एनी आंसर रॉन्ग. और देखिए, आई टुक 1 hour and 14 minutes टू डू दिस पेपर, हालांकि जिसमें पहले 5 मिनट मैंने आप लोगों को बातें सुनाई, फिर ये किया, फिर वो एक्सप्लेनेशन की. आप लोगों ने इतनी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना करनी. सो दिस इज़ इन इट्स एंटायरिटी, this paper can easily be solved. It's a 1 hour paper, it's an O-level paper, it's a 1 hour paper. This can easily be solved in 25 minutes. I'm not even joking. 25 to 30 minutes max. आधे टाइम में MCQ सॉल्व होते हैं. मैं इतनी एक्सप्लेनेशंस और सारी चीज़ें करने के बाद आई सॉल्व इट इन हाउ लॉन्ग? 1 hour and 14 minutes, जिसमें से बातें भी बहुत है. सर MCQ 33 में नेमिंग दिखा दे, इजंट इट रॉन्ग? नहीं, क्यों गलत है? मैथ एथ 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है. मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट 2 मिथाइल पेंटेन है. एंड दिस इज मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन है. और ये 1 2 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन. 2 ब्रांचेस. ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, सलाउद्दीन लाइव क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, ये ब्रांच 1 या 2 नहीं है. आप देखें लाइव क्लासेस. वाई विल मेल्टिंग पॉइंट बी लोअर? वेयर लोअर? सर CIE में क्या MCQs पूरे रिपीट होते हैं? नहीं सर, बट मैं तो लिखती हूँ कि सिंथेटिक पॉलीमर्स कैन बी. गलत लिखती हैं, बिल्कुल गलत लिखती हैं सालेहा. सर एक क्वेश्चन पूछ लूँ? जी पूछ लो. मैं रिकॉर्ड